Right. So let's begin the conversation, Kapilji and Kunalji, both of you. I'll address you as K and K because that's how your initials are. In fact, it's K squares into both your sides, Kapil Kapoor and Kunal Kapoor. So, Kapilji, how has been your professional journey? We'd all love to know this. Of course, we know as basics that you're a very renowned sculpture artist and you've been doing a lot of work. But Kapil ji, I can hear my own voice. वो echo कर रही है. Can you please speak again? I'm not listening to you properly. yes, वो वही उसको कह रहा हूँ. Yeah, please. अभी आपको echo तो नहीं कर रही? नहीं, अब it's absolutely fine. चलिए start करते हैं. Let's start. Right. So wonderful. So Kapilji, like I asked, that we all know you and Kunalji both to be a very renowned sculpture artist, and you've both been together. You've been working a lot of artworks and sculptures, basically, that you've been creating. So, as me also, who've known you for so many years, I have known you as a sculpture artist, but I have not really known the history of it as to how and where you've reached to this success that you are here. What has been your journey, Kapilji? I'd like to hear this individually from you and Kunalji. So, probably starting with you, Kapilji, that what has been your journey? Ankitji, it has started from our family itself because my father and my grandfather both were the sculptors and they have a foundry and they were making the sculptures and Yeah, please go on. And the journey starts from last 40 years. 40 years. And I had joined my father in 1996. So, how has been? You've done some studies, you've done some work, you've been studying art, how to do sculptures. I had learned from him and Kunal itself from our father. Actually, we had a complete institution in our family. Like grandfather was artist, father was artist. So we learned many things from him. It was like we were learning since childhood, watching them while working and all. So, Kunalji, kabhi you've been, have you done any studies in art? Like, have you done any course or somewhere that you really learned that professionally? I'm not getting your voice. I was saying, Kunalji, that have you done something very professionally? No, we never been in any art college. Our foundry is our art college. Okay, that's wonderful. No, so, this is. I think this has been very interesting journey because being have so many admirers of your work. Abhi Nina ji bhi likh rahi thi in one of the comments. She's a very big admirer of your work, and this is all I would say. Is it all out of practical experience that you got from your father? Yes, we got experience not even from our father, from our grandfather. We seen our uncles while working. We had worked with Mr. Satish Gujral for almost 70 years.
17 years, Almost you're 20 saying to years. be 20 years. And while working, yes, while working with him, we learned many things about art, about architecture. Superb, superb. And Kunalji, how about you? Kunalji, have you done also some sort of any literature work in learning properly, like theoretically you've done something in the field of sculpture, or this has also been your same Yeah, yeah. experience? Uh, it's also been the same because we have been the same through the same same streets of the life, and we struggled a lot. We holded hand of each other. हम लोगों ने साथ में सब कुछ करा, साथ में सब कुछ सीखा। और बस एज अ यंगर ब्रदर मैं इनसे अपना गुरु मान के इनसे सीखता चल रहा हूँ, पीछे पीछे चल रहा हूँ। और जो भी फैमिली में लेगेसी रही है, जो भी हम लोगों ने अपने गुरुओं से सीखा है, वो सब हम दोनों ने साथ में ही सब कुछ करा है। और अभी भी जो है ही इज माय मेंटर। That's really nice, Kunalji, to hear that because मुझे भी अभी तक पता नहीं था कि आप में से बड़े कौन है और छोटे कौन है। और now that in this conversation you've told me this, that you're the younger one, I was about to ask that also, that who's the elder out of the two? I'm the elder one and he is the younger one. We both have two brothers, and I really thankful to the God that we. We are working together. We have learned together, and So, sorry, आपकी बात बीच में रुक गई. You were saying something? To give such kind of art which can give pleasure and happiness to the society. Wonderful, wonderful. So, Kapilji and Kunalji, I wanted to ask this question, that you both together have this, I would say in the art field, you have this brand called, like you call your association as the Ganesha Art. Am I right with that? Yes. Yes. Right. So, my question was that, of course, are you like you're a very strong believer of Ganesh ji, or is it something related with your art form? क्या आप शायद कुछ ज़्यादा sculptures बनाते हैं related to गणेश जी के ऊपर, या आपके अपना belief है? Why this name? Why did you come out with this name only? There are both things. First of all, Ganesh Bhagwan, Lord Ganesha is the very first God. कोई भी शुभ काम करने से पहले हम उनकी प्रे करते हैं. We pray at today. So basically, you are a very strong believer of it as well, and that is probably the reason that you had the Ganesh is the lord of Mercury, and the Mercury, yes, Mercury, and Mercury itself is a lord of art and culture. Interesting, Kapilji. I think it's very nice. A lot of people, we are all God-fearing people. हम लोग सब लोग we believe in our gods and we believe in certain different. We all say that सारे भगवान एक समान हैं, but हम सबकी एक belief होती है. And to have that name on that name, like जिनकी आपकी belief है, उनके नाम पे you have your work starting. It's probably a very good auspicious thing.
ही हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन और ज़्यादा स्पिरिचुअली हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं अपने वर्क के साथ में, और एक बिलीव है हमारा माइथोलॉजी में, अपने इंडियन कल्चर में। राइट। कुणाल जी, मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आपको वॉइस थोड़ा सा शायद रेस करना पड़े, बिकॉज मैं आपकी आवाज थोड़ी कम सुन पा रहा हूँ। ओके जी जी, सो मेरा आपसे एक अगला सवाल ये था आप दोनों से, दैट आप लोग बेसिकली यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ट्राइबल आर्ट, जो कि मैं पढ़ रहा था, एंड आई वाज डूइंग सम रिसर्च बिफोर आई हैड टू इंटरव्यू बोथ ऑफ यू। तो मैं उसमें पढ़ा था कि आप लोग काफी ट्राइबल आर्ट पे काफी काम करते हैं, एंड आप अपने काम को ऐसे इस नजरिए से आपने अपने डिस्क्राइब किया है कि इट इज अ वर्क ऑफ इनोवेशन एंड री इन्वेंशन। आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? Tribal art is actually the mother of all art in this world, and it inspires us and it fascinates us. So what we are doing, we are taking inspiration from tribal art, not even from India, but the art from Europe, Africa, different countries, and we are creating such we are creating such kind of creation. Those are abstract, those are modern, but still they are connected with their roots. Interesting. So that's how you call it as an innovation and reinvention. Exactly. Right. So, Kunalji, I'll also want to ask you this question, that ट्राइबल, अगर हम लोग जब ट्राइबल वर्ड यूज करते हैं और हम लोग जब बात करते हैं अबाउट ट्राइबल आर्ट, तो हमें ये लगता है दैट ट्राइबल आर्ट इज समथिंग व्हिच इज वेरी एंशिएंट, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी मॉडर्न। बट आपने अपनी एक इंटरव्यू में और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा था दैट ट्राइबल येट मॉडर्न। हाउ कैन यू डिफाइन दैट? बिकॉज मैं अगर किसी ट्राइबल चीज को इमेजिन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी एंशिएंट एंड ओल्ड बट नॉट वेरी मॉडर्न। Yes. See, tribal word we use for inspiration, like tribal art जो था, उसमें हम देखते हैं वो symbols के साथ मेंशन किया जाता है, और हमने उस सिंबल आर्ट को अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग क्रिएट करके और उसको प्रेजेंट करा है। तो उसमें ट्राइबल आर्ट का बहुत बड़ा हाथ है हमें इंस्पायर करने में, हमें एक थॉट प्रोसेस देने में, जिसको हम अपने परसेप्शन, अपने आइडियाज के हिसाब से उसको आज के जो आज का हमारा सिनेरियो है, जो आज का हमारा आर्ट वर्ल्ड है, उसके मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल था कुणाल जी कि हम लोग इसको ट्राइबल येट मॉडर्न कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन वी कॉल दैट एज बी मॉडर्न आल्सो? ओके, मैंने आपको बताया ना कि ट्राइबल आर्ट को हम मॉडर्न में इनोवेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम उस ट्राइबल आर्ट से इंस्पायर होकर आज की मॉडर्न आर्ट को एक वो ट्राइबल लुक देकर उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप मेरा एक सीरीज देखेंगे, दिस इज आर्ट एंड सोल, जिसमें देयर इज नो बॉडी, ओनली सिंबलाइज्ड सोल, देयर इज जस्ट अ सोल आई हैड मेड। तो अगर आप उस सीरीज में जाते हैं
So that is a pure tribal art, which we converted into modern art. Okay, because see, I am like a layman. अगर मैं एक layman हूँ जो art को इतना in depth नहीं समझता, तो मेरे लिए सवाल बहुत जरूरी था जानना, क्योंकि as a layman मैं tribal art को थोड़ा ancient और not modern मानता हूँ. But this is very interesting that you have made. That's why you call it like your innovation and reinvention. आपने दोनों चीजें कहीं ना कहीं मेरे सवाल को connect कर दिया कि this is your own innovation to get the tribal art being more modern. अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो. Right. Great. And Kunal ji, thank you. Now you're more audible. आपकी आवाज अब मुझे बहुत clearly आ रही है, which is very good. Initially मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी. आपने बिल्कुल ठीक कहा. So, right. Thank you. So, Thank you. कपिल जी, आप क्योंकि कुणाल जी के एक तरीके से मेंटोर हैं, और जैसे कि बहुत अच्छे से उन्होंने इस शो को शुरू किया, ये बात अप्रिशिएट करके और बात बोल के आपके लिए, तो मैं ये आपसे ये बात जानना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ योर मोर एक्सपीरियंस प्रोबेबली इन दिस लाइन ऑफ बीइंग अ स्कल्पचर एज वेल, कि कपिल जी, ये हाउ इज अ स्कल्पचर आर्टिस्ट very different from other forms of art? क्योंकि हम लोग बहुत से कैनवस आर्टिस्ट को देखते हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंस्टॉलेशंस पे काम करते हैं, आप स्कल्पचर्स पे काम करते हैं, तो how is it become very different from the other forms of art? If you could explain that to my viewers. I feel that an artist is an artist. Either he is working on canvas with paints, or he is working on sculpture with clay or with stone, or they are making any kind of installation while using the different thing. They all are artists. Even a person at home who is doing cooking and making a very delicious food, this is also an art. So the people, those are creating something, is an artist. Either they are using any material or anything. The sculpture artist, no doubt, doing the hard work and hard job, in art, other than other forms of arts. But I precisely say that the artists or art forms are all equal. आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात बोली कपिल जी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू सेड एनी आर्टिस्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज स्टिल एन आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो क्ले हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो कैनवस हो, व्हिच इज अ ब्रिलियंट थॉट, आई मस्ट से. Thank you so much. आप दोनों से मेरा एक छोटा सवाल है, क्योंकि ये बड़ा इंडिविजुअल सा थॉट है. मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, आप जब कुछ एक स्कल्पचर बना रहे हैं, आप एक स्कल्पचर पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा है कि क्योंकि स्पेसिफिकली बीइंग अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, क्या ऐसा जरूरी है कि आप लोग के जो हाथ होते हैं, जो हैंड की जो मूवमेंट है, वो बड़ी स्टेडी होनी चाहिए? It should not be very shaky, it should not be very kind of a trembling, but it has to be very steady, क्योंकि जरा भी आपका अगर हाथ थोड़ा शेक करे या कुछ करे तो आपके स्ट्रक्चर में फर्क आ सकता है. Hi Pooja, I can see you logged in. Hi Yosnadeep, I saw you as well. Thama has joined in. आपकी आवाज बीच में चली गई थी कपिल जी. Because otherwise we will be unable to create the different. कपिल जी थोड़ा सा you'll have to speak a little louder, so मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा.
Actually, somebody had called on the phone. So, थोड़ा सा hello. right. Yeah, I can hear you. Yes, we require the steady hands to create the things. Otherwise, it will deform the sculpture or artwork. Right. So, following with a question that I always had in mind, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था that when you make, आप जब बनाते हैं अपने sculptures, तो how do you work? Like, do you do a brainstorming? आप दोनों बैठ के brainstorming करते हैं कि कुछ कुछ थीम के ऊपर काम करना है या कोई इंस्पिरेशन है, जैसे कि आपने कहा कि गणेश जी को बहुत और गणेशा को आप बहुत मानते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ही कैन बी योर इंस्पिरेशन कि आपने उनके ऊपर कुछ स्कल्पचर्स बनाए, बट उसके अलावा जब आप ट्राइबल पे काम करते हैं, ट्राइबल आर्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हाउ इज योर इंस्पिरेशन? व्हाट डू यू डू? लाइक, डू यू डिस्कस अमंग्स ईच अदर, या आप कुछ सामने रखते हैं जिसको आप देख के कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं? देखिए, इंस्पिरेशन तो हमारे इर्द गिर्द ही होती है। सिर्फ सोचना ये होता है कि हमें क्या थॉट, क्या प्रोसेस हमें लेना है। और लाइक अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं तो हम अपनी मदर से इंस्पायर होते हैं, और अगर हम किसी भी करंट इशू के ऊपर कुछ हम सोचते हैं कि हमें कुछ आइडियाज लेने, तो सोसाइटी प्रोवाइड करती है। आज के टाइम पे इतना कुछ है, हमारे चारों तरफ हो रहा है, इतनी डायमेंशनल चीजें हो रही हैं, उन चीजों को हम लोग अपने हिसाब से ही अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम उनको सोचते हैं, और देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइडियाज। अच्छा, आइडियाज कैसे आते हैं, ये बड़ा ही स्पिरिचुअल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशनल चीज है। ये हम लोग खुद से ही आज तक नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हम लोग मतलब देयर इज समथिंग इन नेचर, इन एटमॉस्फेयर, इन दिस कॉस्मिक। कुणाल जी, अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, और इतना लोग काफी, आप देखेंगे काफी डिप्रेस्ड हैं, और बहुत सी चीजें आसपास हो रही हैं, सबके लिए एकदम नॉर्मल लाइफ नहीं है जैसी हम जी रहे थे, तो उससे ठीक लेके आप लोगों ने कुछ क्रिएट किया है अभी रिसेंटली? हेलो, could you please speak again? मेरा सवाल ये था कुणाल जी कि अभी आसपास कोरोना को लेके हम लोग, हाँ जी, प्लीज। या Yes, it inspires us. I had created a sculpture on Corona warriors, which I hello. which we are going to exhibit in public exhibition whenever it is going to be happen. We are waiting till the lockdown khatam ho, galleries open ho, and we'll do an exhibition. And at that time, I'll show you that sculpture. लवली, वी लुक फॉरवर्ड टू सी दैट। मैं आपसे अभी डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहूंगा उस वर्क को, बट जरूर उसको एग्जीबिशन पे हम देखेंगे आगे। तो जी, तो मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा, जब हम लोग हमारी टीम आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी आपसे बात करने से पहले, दैट आपकी इंस्पिरेशन काफी रही है फ्रॉम डोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ एंड यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज से। तो मैं एज अ लेमैन समझना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों चीजें बड़ी अलग सी नहीं है, कि एक इंस्पिरेशन आपको मिल रही है डोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ से, और एक कुछ आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज से, तो क्या दोनों के फॉर्म्स में बहुत फर्क नहीं होता, दोनों का अंतर? देखिए,
दोनों में अंतर बहुत है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में हम लोग डोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ से इसलिए इंस्पायर हुए क्योंकि वो बहुत अनटच्ड एक एरिया था, और जिसके साथ में वहाँ के रिचुअल्स बड़े अनटच्ड थे, जो इस एक हमारे एक रेगुलर लाइफ से, एक सराउंडिंग से बहुत परे थे। और अफ्रीकन और यूरोपियन ट्राइबल्स भी ऐसे रहे हैं अपने आप में, जिनमें कई सारे ऐसे रिचुअल्स रहे हैं, कई सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो हमें नॉर्मली लाइफ में देखने को नहीं मिलते। तो हम लोगों ने उनके बारे में स्टडी करा, दोनों ने कई बुक्स हम लोगों ने पढ़ी उनके बारे में। देन डोकरा आर्ट को हमने अपने एक डोकरा आर्ट में हमने एक विजन देखा कि कैसे वो चीजों को प्रेजेंट करते हैं। और यूरोपियन और अफ्रीकन ट्राइबल्स में भी हमने यही देखा, जैसे अफ्रीकन मास्क आर्ट जो है वो बहुत फेमस है। तो अफ्रीकन ट्राइबल जो मास्क बनाते हैं उसके पीछे एक अलग स्टोरीज होती हैं। तो हमने उनसे वो चीजें ग्रास्प करी कि हमें अगर कुछ बनाना है तो उसके साथ हमें किसी स्टोरी को लेकर आना है। यानी स्टोरी को लेकर आना, यानी हमारी बनाई हुई आर्ट में हमारा जो विजन है वो प्रॉपर नजर आना चाहिए, ताकि बेसिकली क्या होता है कि आर्ट के बहुत सारे डायमेंशंस है। एक स्कल्पचर मल्टी डायमेंशनल होता है, तो हर डायमेंशन पे एक आदमी जहां खड़ा होता है उसका अपना विजन एक क्रिएट होता है। तो हम इसलिए उसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने नजरिए से देखता है। तो जब इंसान अपने नजरिए से एक आर्ट को देख रहा है तो उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो उससे उसी को कनेक्ट करेगा। इफ आई एम हैप्पी सो आई विल फाउंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। तो यही चीज हम लोगों ने सीखी और कनेक्ट करी, क्योंकि उनकी आर्ट में एक रिचुअल बड़ा क्लियर नजर आता था। You got very well said, कुणाल जी, बिकॉज आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हमारे आसपास अगर हैप्पीनेस है तो वो आपके काम में और जनरली लाइफ में भी वो झलकती है। और वेरी वेल थॉट एक्चुअली, नॉट जस्ट फॉर आर्ट। आई थिंक मैं आर्ट लवर्स के अलावा भी ये थॉट को बहुत पॉजिटिव मान के चलता हूँ। बट बिल्कुल। सो मैंने कुछ चीजें और नोट भी करी, जैसे कि मैं देख रहा था कि आप लोगों ने काफी वर्क किए हैं फॉर लॉट ऑफ होटल्स, and lot of your works are basically in lot of hotels and a lot of high commissions. तो क्या ऐसा होता है कि they like your work and they take it, या आप कुछ customize भी करते हैं आर्ट वर्क स्कल्पचर्स बेसिकली फॉर एनीवन? जैसे कि कोई अगर हाई कमिश्नर है और वो कहें कि they need a certain kind of a sculpture, तो you work around that, or is it that what you prepare and they like it? No, we work like that too also, because we do commission work also, we do customizing the art। और हम लोग हाई कमीशंस के साथ और होटल्स के साथ अपने डिजाइन्स भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। बट अगर क्लाइंट की कुछ उनके आईडीज की कुछ थीम के अकॉर्डिंग रहता है सजेशंस, तो हम उसको भी फॉलो करते हैं। Lovely, lovely. I have a lot of new guests joining in. I have Sheni Soni who's joined in, Kritika and Nina G has been here. So I just want to introduce all of you guests to my special people here today, both of them. So Kapil Kapoor ji and Kunal Kapoor ji are very well-known sculpture artists, and they are here with me on live with Candid with Ankit Nagpal, and we are trying to understand the form of art as sculptures, which is wonderful. Some questions, मुझे ऐसे कुछ सवाल लगे जो मैं कभी कपिल जी से पूछ नहीं पाया, और आज क्योंकि ये चैट हो रही है तो मैं इसका पूरा कहूँगा पूरा फायदा उठा रहा हूँ ऐसे सवाल पूछने का जो मैं कभी मेरे जहन में थे बट मैंने कभी पूछे नहीं। तो इसी से मेरा एक और जुड़ा हुआ सवाल आता है कपिल जी के, एज एन आर्टिस्ट कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं दिस प्रोफेशन? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हर प्रोफेशन में अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो एज एन आर्ट वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या डिफिकल्टीज है मेजर जो आर्टिस्ट फेस करते हैं? So difficulties तो खैर हर फील्ड में है। There are difficulties in all fields. जी जी आ रही है आपकी बात। म्यूजिक आ रहा है, गाना आ रहा है। तो डिफिकल्टीज तो आती हैं। That difficulties are like
we are creating the things, then we are going to market it, and we are ourselves has to find the market for them what we are creating, and we do not know what we are the things which we are creating, people will like them or not. So there is a lot of time consuming job, there is a lot of uh, material consuming job, a lots of money we had invested. After that we do exhibition, and we don't, sometimes we get clients and sometimes we don't get anything. And above all, we do not get any kind of help from banks also. The artist doesn't get loans from banks easily. ग्रेट। मैं कुणाल जी, मैं कपिल जी, इनफैक्ट आई एम हैप्पी यू आर यूजिंग दिस, क्योंकि इससे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई है। आई थिंक जब आप जवाब दे रहे हो वन ऑफ यू, तो यू शुड यूज द सेम हेडफोन। इसका माइक्रोफोन थोड़ा ज्यादा क्लियर है। आई कैन हियर यू वेरी वेरी क्लियर नाउ। सो इनफैक्ट अभी शैनी हैड आल्सो पुट इन अ मैसेज। शैनी हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने मेंशन भी किया कि डीसीए में उन्होंने बहुत पहले ज्वाइन किया था एज अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उनका एक सवाल आ रहा है, अभी आ रहा है, तो मैं अभी बीच में ही पूछ लेता हूँ कि क्या मटेरियल यूज होता है? इज देयर अ मीडियम ऑफ द स्कल्पचिंग? व्हाट मटेरियल इज देयर? There are many kind of materials we use. We start from clay, then we use wood, then we use stone, we use fiber reinforced polymer. We can use metal like copper, bronze, brass, aluminium, and then sheet. We can fabricate the things. Superb, superb. I think Shani, you have the answer now for your question. And another question I've always had in mind to ask all the artists, और आपसे मेरी बात हो रही है तो I love to ask you this, that Indian fairs, Indian art fairs and fairs which happen in abroad, तो दोनों में आपको क्या फर्क लगता है in terms of as a participant? आपको लगता है कि both are of their own values या दोनों में फर्क है? Yes, both have their own value. It depends, because India has a very small art market comparison to the whole world, and the India is the biggest market of anything in world, but the very smallest market of art in India, because यहाँ India में we don't have such kind of programs which can teach people how to praise the art, how to buy the art, because it is also something that you should know how you can evaluate of a value of an artwork. And generally in India, people think like there are a lot of potential over here. We have to teach the people so that they can understand the art and they can buy it. जो मेरा इसी से आपसे इवैल्यूएशन को लेके एक सवाल अगला है, बट उससे पहले मैं आपसे ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है एज एन इंडियन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तो मुझे लगता है दैट देयर इज अ बिग मार्केट ऑफ आर्ट, मार्केट इन द सेंस नॉट एज बायर्स बट एज आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक स्मॉल टाउन में भी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वैसे कहीं विलेज में भी अगर हम कहीं जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वहां भी कोई ना कोई एक ऐसे कलाकार हैं हु इज डूइंग अ ग्रेट आर्ट वर्क। There is a market in India in everywhere. You will find a market everywhere in India. There is a category of art. You can find a buyer. Those have a pocket of 1,000 rupees. You can find a buyer. Those have a pocket of 50,000. You can find a buyer. Those have a pocket of 20 lakhs. You can find a buyer in India itself. Those have a pocket of 2 crore or 5 crore, 10 crore rupees. But it depends how to approach them, how to approach the right people. And in Indian art fairs, we should have to concentrate on that. Well said, Kapil ji. I think you very well answered my question here because मुझे डाउट था इस चीज का भी पूछने में, और शैनी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन और पूछा है। मैं वैसे व्यूअर्स क्वेश्चन बिल्कुल एंड में लेता हूँ, बट शैनी बीइंग सच अ डियर फ्रेंड, उनका सवाल भी बहुत ही वैलिड है, which I would like to ask you in between only. So she has asked me this, that which particular medium is difficult and which one is easiest for you both, and also the most favorite medium?
The difficult medium is stone. The easiest medium is fiber reinforced polymer, and our favorite medium is bronze. Bronze. Okay. Sherry ने एक सवाल और डाला है. What do they have to say on brands like Ladraro? And I think I'm pronouncing it wrong. LLADRO. It's a Jadro. It's a Spanish. Jadro. Okay. Yes, it's a Spanish brand. It's a company from Spain. They are making the sculptures in porcelain, and they have very exclusive collection. Like you can find what I had told you before, that India is the biggest market, and people can get the customers of any value. Like the Jadro is selling their sculptures starting from 15,000. A small Ganesha piece they are selling at 15,000, and that goes up to 10 lakh rupees. So this is how the market is here. We have to approach the right people to sell the things, and in that we both are trying. Superb. I think a sculpture artist जिनको knowledge है, and you both who are the masters of it, can only ask such very particular questions. मैं pronounce भी नहीं कर पाया उस word को, but Shelly had asked me this. So she's a huge fan of it though. I would like to comment one thing more over here. There is a foundry which was established in 1921. The name is La Abre the Oc. Is owned by my family, and that was founded in 1921 in Luxembourg. Luxembourg is a very small country near to Belgium in Europe. 1921, you're saying, which is yes. It's almost 100 years in next year. Amazing. No wonder you come from a family of serious artists, people who are so knowledgeable. आपने जैसे कि अपने फादर ग्रैंडफादर के टाइम से लेगेसी आ रही है, so which is great. बट हम लोग अभी कुछ इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे कपिल जी, और मैं ये सवाल कुणाल जी से करना चाहूंगा एक्चुअली. ये मेरा सवाल ये है बेसिकली कुणाल जी के, हाउ डू यू इवैल्यूएट द कॉस्टिंग, क्योंकि आप इवैल्यूएशन की अभी कपिल जी बात कर रहे थे, तो हम लोग इसको कॉस्टिंग को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? मतलब बिकॉज आपके लिए तो मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट के लिए सारे पीसेस एक समान है. मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने 10 स्कल्पचर्स क्रिएट करे तो 10 आपके लिए फेवरेट है, तो आप उसको कॉस्टिंग कैसे इवैल्यूएट करते हैं दैट यू फील दैट इज जस्टिफाइड? देखिए, कॉस्टिंग करना एक सबसे टफ पार्ट आ जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग सबसे पहले तो यही इवैल्यूएट करते हैं कि डिजाइन जो हमने करा है, इस डिजाइनिंग में हमें कितना टाइम लगा, उसके एग्जीक्यूशन में हमें कितना टाइम लगा. फिर उसके बाद में हमारे सभी ज्यादातर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के साथ होते हैं. जो भी हम डिजाइन्स करते हैं वो हम इतने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का उसमें हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्कल्पचर्स को हम टॉप पे खड़ा करते हैं, तो हमें उन चीजों के एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना होता है. और फिर मटेरियल की कॉस्ट हम लोग देखते हैं कि हमें किस मटेरियल में जाना है, तो हम लोग उसके हिसाब से कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं. फिर बड़ी सारी चीजें अंकित जी, इंस्टॉलेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवलिंग है, फिर समटाइम्स वी इंस्टॉल बिग स्कल्पचर्स इन वेरियस सिटीज, तो फिर वहां तक ट्रैवल करना, ये सब चीजें हम लोग ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं. लाइक हम लोगों ने 2014 में स्कल्पचर्स इंस्टॉल किए थे रेडिसन इंदौर में, तो वहाँ हम लोगों को तकरीबन 1 हफ्ता हम लोगों ने वहाँ रहकर उन स्कल्पचर्स को इंस्टॉल किया था. तो वो सभी चीजें हम लोगों ने उसमें, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप रहता है कि हमें कैसे अपनी जो कॉस्ट है उसको, जो वैल्यू है उसको इवैल्यूएट करते हैं. Great, Kunal ji. In fact, I'm happy, Sheni, you're asking questions. It's making more interactive, and आपके जो questions are very pertinent. So, Sheni, one of the viewers is also asking that how is it, और ये बहुत valid question मेरे लिए रहेगा for all the other viewers and people who watch it later as well, that how can anybody visit and see your work? How can they see your sculptures? Sheni ये जानना चाहती हैं कि अगर वो आपके स्कल्पचर्स देखना चाहें तो आपको कहीं विजिट कर सकती हैं या ऑनलाइन देख सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन देख सकते हैं हमारे स्कल्पचर्स. सून हम लोग एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं. हम लोग एक हमारा वेबसाइट
जो है नेक्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएगा। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है फिर से। बहुत जल्द हम लोग एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग एक वेबसाइट अपना प्रॉपर, जिसके ऊपर आप हमारे सारे स्कल्पचर्स देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अंकित जी, टाइम टू टाइम शोज होते रहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम, विल सेंड यू इनवाइट थ्रू अंकित जी। Sure, but is there any place that anybody wants to come and see कोई workshop आपकी as such? We have a studio in Delhi, but it's a workshop kind of studio, so you are more than welcome. You just give us a call and visit any day. Can you share us the location? कहाँ पे है exactly है? It's in West Delhi. West Delhi में. All right, great. So Shani, here comes your answer. The day you want to visit, you can always get in touch with them on the Instagram. Instagram यही है कपिल और कुणाल जी का. So you can always reach out to them, and they're wonderful people, I must say, Shani. I've known Kapil ji for a very long time. आज मेरी कुणाल जी से बातचीत भी हो रही है. Very down to earth, I must say. So My pleasure. जी, तो मेरा ये आखिरी एक सवाल आपसे रहेगा प्रोफेशनल साइड ऑफ इट में, थोड़ा सा पर्सनल भी जानेंगे आप लोगों के बारे में कि हाउ आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि कोरोना के दिन हैं और वायरस और ये सब चीजें भी हैं, चल रही हैं, तो अभी फ्यूचर प्लान्स आप कैसे लेके चल रहे हैं अपने काम को लेके? अभी देखिए, फ्यूचर प्लान्स तो ऐसा है कि अभी हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, और हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड का हम लोगों ने पूरा बेनिफिट लिया है। हम लोगों ने काम करा बहुत अच्छे से और बड़े शांत मन से काम करा, क्योंकि मोबाइल्स बंद थे, मतलब कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, और हम लोग सिर्फ अपने दोनों भाई काम में ही लगे रहे। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं, और जिस गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है अभी तो अंकित जी, लेट्स सी और कितना जो है कहर होता है, कहाँ तक जाते हैं, कितना वेट कराते हैं, तो उसके बाद प्लान जो है बनेंगे। क्योंकि अभी तो प्लानिंग करना इज लाइक पानी को काटना। जी सॉरी, मैं चाहूंगा वापस अगर मैं एक कपिल जी से एक सवाल पूछ पाऊं, तो इफ आई कैन कम बैक टू हिम। So Ankit ji, we are also working on a website which is going to be launched very soon. In that website, not even we will sell our artwork, but we will promote the other artists also. I had tie up with 3 different international companies to make a platform to sell the art internationally of Indian artists. Either they are master artist work or they are upcoming artist work, and we are working on that platform, and very soon, hopefully, along with you, we can launch that website and platform. Always there for good work, Kapil ji. You've been doing fantastic work, phenomenal work. मैंने आपका काम देख रखा है, and I can personally vouch on that for sure. And my dream is to create a bank also for the artists, because there is no bank who is giving a loan to any artist. But my concept that we can give the loan against the artwork, not against the property, so the artist can do their shows, invest that money in their artwork, and they can go higher and higher where they actually belong. वाओ कपिल जी, मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी से, एंड वंडरफुल प्लान्स आई मस्ट से, एंड कांग्रेचुलेशंस। अगर ये आप कर पाए तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आप लोग मिलके करेंगे फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। और मैं अपना प्रोफेशनल साइड आपसे खत्म करने ही वाला था सवाल पे, बट शैनी का एक सवाल मुझसे मिस हो गया बीच में, कि उन्होंने आपसे वो जो एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करी थी, मैं उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था ठीक से, तो वो ये पूछ रही हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू देम इज लैकिंग इन इंडियन स्कल्पचर्स दैट इज होल्डिंग देम बैक टू रीच द राइट ऑडियंस एंड अप्रिसिएशन। Marketing platform, ma'am. That's why we are working on that, so that not even we can create the art, but we can help the artist to sell the art. नहीं, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, आपके बारे में नहीं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ
कि जो जागरो है वो जो अपना आर्टवर्क, अपना स्कल्पचर सेल कर पा रहे हैं इंडिया में या अदर कंट्रीज में बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो वही मैं आ रहा हूँ कि हम लोग इसीलिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि हम अपने साथ साथ दूसरे आर्टिस्ट को भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म या उसी तरह का मार्केटिंग मॉड्यूल दे पाए। वी आर वर्किंग ऑन अ मार्केटिंग मॉड्यूल, वेरी सून वी विल लॉन्च इट सो दैट यू कैन फाइंड द वेरी बेस्ट artwork from the depth of Indian heart, which is actually an art, और जिसको आप अपने आप से कहेंगे कि यार वाओ। Superb. I think there were a lot of things that I always wanted to ask you, and आज कपिल जी आपसे पूछ ही लिया मैंने ये सारे सवाल, क्योंकि हम एज अ लेमैन इतना नहीं समझ पाते एज स्कल्पचर्स को, आर्टवर्क्स को, बिकॉज we are people who appreciate work final, कि जब वो चीज रेडी हो जाए, स्कल्पचर रेडी हो जाए, तो देख के हम ये कहते हैं कि एज अ लेमैन मैं कह रहा हूँ कि दिस इज लुकिंग वेरी नाइस और इट इज वेरी गुड, और तभी शायद हमारी इंटेंशंस बाइंग की होती हैं। बट आज ऐसे कुछ सवाल मैंने आपसे जो पूछे, विच इज लिटरली लाइक मेकिंग ऑफ अ स्कल्पचर, लिटरली इज वाज वेरी हेल्पफुल इन माय नॉलेज आल्सो। थैंक यू। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों भाई हैं, तो आप एक कॉमन कंसेंसस में कैसे आ पाते हैं किसी स्कल्पचर को लेके? आप लोग के आई एम श्योर व्यूज अलग होंगे, डिफरेंसेस अलग होंगे, थॉट प्रोसेस अलग रहता है, तो कॉमन कंसेंसस, कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि नहीं यही करना है, अब ये वाला करेंगे आज इस टाइप में? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क है। कुणाल इज वर्किंग ऑन हिज ओन थॉट्स, आई एम वर्किंग ऑन माई ओन थॉट्स। जहां झगड़े की आप बात कर रहे हैं ना, वो जब हमें उसको कास्ट करना होता है या टेक्निकल इश्यूज पे आते हैं ना, वहां झगड़ा होता है। वो भी झगड़ा नहीं होता ना, डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन होता है। That's what I meant. कभी-कभी वो हॉट होता है, कभी-कभी वो हॉट होता है, बट डिजाइनिंग पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग। He works on his own thoughts, I work on my own thoughts. लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बिकॉज हमें घर में ही एक दूसरे को क्रिटिक भी मिल जाता है। काम बनाने के बाद में एक दूसरे को दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं। और यहाँ हमारे अलावा हमारी मदर भी हमारी क्रिटिक है, हमारे काम में सबसे पहले कमी वही निकालती है, इसमें ये कमी है भाई, तो करते हैं। मैं इनफैक्ट अभी वही कहने वाला था जो शैनी ने भी लिखा है, that मैं in my words I was about to say that two minds and two brains, two ideologies can create the best piece at the end of the day. तो अगर आप लोगों के बीच में कोई किसी बात पे डिस्कशन भी रहती है, तो फाइनल आउटकम जो निकलता होगा वो दो माइंड्स का, एक माइंड का नहीं है। वही शैनी ने लिखा है that I'm sure if there are clashes it makes a masterpiece. Yes. वंडरफुल। आपके पास ऑलरेडी एक सवाल मेरे पास आ गया है, एक और, हम क्योंकि अब थोड़े पर्सनल साइड पे चले गए थे, तो अभी शैनी ने ही एक सवाल और पूछा है that can she assist you? She's a very passionate person in her work. She's a stylist और शो डायरेक्टर हैं, और जो भी काम करती हैं बिल्कुल 100% करती है, इतना मैं जानता हूँ। तो अभी पूछ रही है can she assist you if she wants to? Yes, why not? We are open to everyone. अगर कोई कुछ सीखना चाहता है, करना चाहता है, they are most welcome, more than welcome. क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर अपने साथ ले जाएंगे तो फिर कौन उसको याद करेगा? Well said, Shani. Shani, you can get in touch with them after this chat on Instagram. They are more than happy to have you on board. और इसी से मेरे थोड़े आपसे पिछले पर्सनल क्वेश्चंस रहेंगे, फटाफट इसको लेके चलेंगे। कि आप लोग इन दिनों कुछ लॉकडाउन डेज में कुछ चल रहा है आपकी? मैं कह रहा था हम थोड़ा सा इन पर्सनल क्वेश्चंस को फटाफट लेते हुए चलेंगे। हाँ जी। तो इन लॉकडाउन डेज में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप मतलब यू बीन कुकिंग और डूइंग समथिंग डिफरेंट एट होम जो आप पहले नहीं कर रहे थे? Many things are there. You're married, Kunal ji? Yes, I am married. We both are married. So we are doing so many things like we had never done before. Like we are doing cooking as well as, sometimes we help our wives in cleaning home.
So many things are there. Superb. So, how is your support of your family? मैं ये भी जानना चाहूँगा as an artist, like your wives, I'm sure you must be appreciating their support thoroughly. उनके बिना भी आप काम अधूरा ही रह जाता है अगर प्रोफेशनली जब तो उनका support जरूरी ना है, रहे जरूरी है। family का। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आर्ट में ही नहीं, हर फील्ड में फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और Great. फैमिली सपोर्ट करती है तभी हम लोग आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। Right. So, आप लोग का कुछ does any of you have any role models that you'll want to share? आपकी इंस्पिरेशन हो कोई या रोल मॉडल्स हो इन दिस वर्क? हम दोनों की इंस्पिरेशन हमारी मदर है। ये मैं दोनों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। हम दोनों की इंस्पिरेशन हमारी मदर है और उन्होंने हमें उस एज से संभाला हुआ है। डैड के जाने के बाद जिस एज में बच्चे ज्यादातर गलत राह पकड़ लेते हैं, हम दोनों, आई वॉज 16, ही वॉज 19 एंड वी लॉस्ट आवर फादर। सो उसके बाद मदर ने ही हमें संभाला, तो शी इज द रोल मॉडल। Wonderful. I think Auntie will be very happy to have such proud. She'll be very proud to have such We are so much talented grateful sons. that she is our mother. We are so much grateful to God that हम उनके बच्चे हैं। That's so nice. Very nice. मेरी तरफ से मैं आंटी को जरूर ये मेरी तरफ से एक रहेगा congratulations कि उन्होंने इतने वो खुद इतनी प्राउड होंगी to have such talented children, both of you. And जी तो और मैं सवाल एक और मेरे आपसे थोड़े पर्सनल सवालों में रहेगा कि कुछ खराब आदतें एक दूसरे की कुछ कपिल जी के बारे में आप बताना चाहेंगे जो आपको नहीं पसंद हो? मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं ना, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। तो हमने कभी ऐसी कोई आदतें एक दूसरे में पनपने नहीं दी जिसको लेके हम एक दूसरे के साथ ये कहें कि मुझे आपकी ये बात नहीं पसंद या मुझे कहें कि मेरे को तेरी ये बात नहीं पसंद। तो हम लोगों ने चाइल्डहुड से लेके आज तक अगर कभी कुछ मस्ती भी करी तो साथ ही जाके करी कि चलो भाई आज वहां चलते हैं, आज ये करते हैं, आज ऐसा करते हैं। तो ऐसा चल रही है, ऐसा ही है। कपिल जी आपकी व्यू सेम है या कुछ आप कुछ अंदर की बात बताना चाहेंगे? मैंने कहा आपकी व्यू सेम है कपिल जी या कुछ अंदर की आप खबर बताना चाहेंगे? कैंडिड विद अंकित टू टॉक कैंडिडली। बिल्कुल हम लोग दोनों जो है ना वो सब काम साथ में करते हैं। मॉर्निंग उठने से लेकर रात को सोने तक तकरीबन साथ ही होते हैं और जितने काम है सब साथ में करते हैं। खाने का भी अपना मजा, पीने का भी अपना मजा। और ये हमें ना वही बात आ जाती है यार, ये हमें हमारी फैमिली से, हमारे बुजुर्गों से मिला है। माय फादर हैड 6 brothers and 2 sisters और सब साथ में रहते थे। माय मदर आल्सो हैज अ बिग फैमिली। शी हैज 5 uncles and then they all have almost 30 cousin and real brothers sisters. So I had seen a very big family in both sides. तो हमें उसी में मजा है। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है हम 2 हैं, काश 2-4 भाई बहन और होते तो और मजा आता। मेरे को इंटरव्यू करने में भी ये सवाल पूछने में और मजा आता फिर ये और थोड़ा सा बड़ा आपको करना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं। I would have enjoyed it completely. तो कुछ ऐसा है कपिल जी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपको किसी चीज का मौका मिले और आपको मैं कहूंगा एक वरदान मिले, ऐसा कोई जिसमें आप कुछ चेंज करना चाहें अपनी लाइफ में अभी तक में फ्रॉम द पास्ट, तो कुछ ऐसा रहेगा ऐसा आप जो शेयर करना चाहें जो आपको अपनी रिग्रेट्स लगे कोई चीज की जो आप चेंज करना चाहें? नहीं यार, लाइफ में रिग्रेट तो कुछ नहीं है, मालिक का दिया सब कुछ है। बस हाँ, अगर एक वरदान मिलेगा लाइफ में चेंज करने का ना, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक बार फिर से उस टाइम में चला जाऊं जब हमारे फादर थे और हम दोनों साथ जाना चाहेंगे। बस यही एक इच्छा है मन में, और कुछ नहीं। वंडरफुल। कुणाल जी, कुछ आपका अलग टेक इस पे या सेम रहेगा? ये हम लोग ना मतलब पासिंग खेल रहे हैं हेडफोन्स के साथ। नहीं, बहुत अच्छा है, उससे आवाज अच्छी आ रही है। या हाँ जी।
मैं आपसे पूछा था कोई आपको अगर वरदान ऐसा मिले कि आप अपना कुछ पास्ट में चेंज कर पाएं, कोई रिग्रेट्स हो जो आप ठीक कर पाएं, आपको लगे, तो ऐसा कोई वरदान को आप कैसे यूज करना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज? मैं सही में बड़ा होके आना चाहूंगा। बिकॉज आई एम फेसिंग दिस सिंस माई चाइल्डहुड। एक बार का मैं आपको इंसिडेंट बताऊं अमित जी, हम दोनों भाई लोकल मार्केट में निकले, बाइक पे थे, और ये बड़ी स्टार्टिंग एज की बात है। आई वाज अराउंड 17 और 18। कुणाल जी, मैं एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। इंस्टाग्राम में ना 1 घंटे का टाइम होता है, तो 10 सेकंड में हमारी ये वीडियो बंद हो जाएगी। यही सवाल मैं आपसे फिर पूछूंगा। आई एम जॉइनिंग बैक, हम लोग फिर कनेक्ट कर रहे हैं 5 सेकंड के बाद। ओके जी, थैंक यू।